Hi. So here we have question number 11 to question number 20 of Sainik School 2023 maths paper. Now you will see first question is find the area of rhombus ABCD having each side equal to 13 centimeter and one of its diagonal is 24 centimeter. Right? Now we know that area of rhombus is half into d1 into d2, where d1 and d2 both are diagonals. Now as you would notice in this diagram, there is only one diagonal provided of 24 centimeter. So we'll have to find another diagonal. So how to find diagonal? We know one property of rhombus. The diagonals bisect each other at 90 degree. Okay. So diagonal B, presuming that we give a name to this, these diagonals bisect each other at 90 degree. So what we have taken is, and bisect means half, so one diagonal's part will be 24 by 2, right? 24 by 2, that is 12. Okay, and 90 degree, and the other in this right angle triangle, the hypotenuse is 13 centimeter, one arm is 12. So we have to find OB, presuming we have given a name O to the intersecting point. So OB square plus OC square is equal to BC square, right? So that means BO square is equal to BC square minus OC square, which is 13 square minus 12 square. Now we know 13 square is 169, 12 square is 144. So OB square is equal to 169 minus 144, that is 25. And 25 is the square of 5. That means OB is 5. Now if OB is 5, OD is equal to OB because diagonals bisect each other. So total diagonal length will be BD, that will be equal to 2 into 5, 10 centimeters. Right? Now we can use the formula. Half into d1 into d2, that is half into 24 into 10, that is 120 centimeter square. So that's how this question is done. Okay. Now moving on to next question. A rectangle ABCD is inscribed in a circle having sides 8 centimeter and 6 centimeter. Find the area of the shaded region. So that is the question. We are given that a rectangle ABCD is inscribed in a circle having sides 8 centimeter and 6 centimeters. We have to find the area of the shaded region. So what you notice here in the shaded region? You notice that there is a circle and there is a rectangle, and rectangle has a property that each angle is 90 degree, and there is a property of circle that if a 90 degree is made, angle is made on one side of the triangle, that means the two corners connecting it, or the chord that makes that angle, is the diameter of the circle. So BD has to be diameter of the circle, which makes angle BAD. I think there's a mistake in terms of writing, so it will be ABCD. So BA and AD are at 90 degree, and BD is the chord that makes that angle, so BD has to be the diameter of the circle. Right? Now BD square is equal to, by Pythagoras theorem, that is BA square plus AD square. Okay, because these two are the base and perpendicular of the Pythagoras triangle. So going by Pythagoras theorem, BD square is 8 square plus 6 square. Okay, that means 64 plus 36, that is 100. Now we know that 100 is square of what number? 10. So BD has to be 10. That is the diameter of the circle.
Now what is the area of a circle of which you know the diameter? So a radius will be half of the diameter, that is 10 by 2, that is 5. And area of the circle is pi r square. Correct? That will be pi into 5 का whole square. Right? That is 25 into 3.14. Okay? है ना? तो अब आप देखिए कि जो रेक्टेंगल है उसका क्या एरिया होगा. रेक्टेंगल का एरिया हमेशा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है 6 सेंटीमीटर. तो क्या हो गया एरिया रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. तो जो शेडेड रीजन उसका क्या एरिया हो गया, सर्किल का एरिया माइनस रेक्टेंगल का एरिया, है ना. दैट इज 25 into 3.14 minus 48, है ना. तो that equals to around 30.25. Okay, 30.5 centimeter square. You can do calculations. 25 into 3.14 is approximately 75, minus 48 will be around 30, and 0.14 into 25 will be around 3. So around 75, 78, 70 minus 48 will be 30.5. Most of the time I don't even calculate, so something which is approximate near to would be the answer, because आपको options दिए हुए ना, तो उसका आप पूरा फ़ायदा लो. करेक्ट केवल एक ऑप्शन ट्रू है, तो 32 नहीं है, 40 नहीं है, 36 है, 30.5 होगा. अब आप देखिए अगला क्वेश्चन. फाइंड m सो दैट -5 to the power m plus 1 into -5 to the power m minus 1 is equal to -5 to the power 3. कितना आसान क्वेश्चन है ये. अब इसमें हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि a to the power m into a to power n is a to the power m plus n. पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -5 को हम LHS पे बाहर ले लेंगे कॉमन, और m plus 1 plus m minus 1 करेंगे. राइट. दैट विल इक्वल टू द RHS विच इज़ -5 to the power होल क्यूब, है ना. तो -5 जो बेस है वो दोनों साइड सेम है, और इधर m plus 1 और m minus 1 क्या हो गया 2m हो गया. 1 से 1 एडजस्ट हो गया. राइट. इसका मतलब है कि -5 to the power 2m इज इक्वल टू -5 to the power 3, तो that means 2m is equal to 3, तो m is equal to 3/2. करेक्ट. ये लीजिए, ये भी हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14th. Denominator of a rational number is greater than its numerator by 2. If the denominator is increased by 5 and the numerator is decreased by 5, number obtained is 1/10. तो आपको रेशनल नंबर पता करना है. तो हमने मान लिया रेशनल नंबर p/q है, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स है. अब प्रॉपर्टी दी हुई है कि जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 बड़ा है, तो q इज इक्वल टू p+2, तो द नंबर बिकम्स p/p+2. अब दूसरी कंडीशन दी है कि अगर डेनोमिनेटर को इंक्रीज़ कर दें 5 से, तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा p+5, और p+2 + 5, और न्यूमरेटर को डिक्रीज़ कर दें 2 से, तो न्यूमरेटर हो जाएगा p-2, और नीचे क्या आएगा डेनोमिनेटर विल बिकम p+2 + 5, दैट इज p+7. राइट. एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/10. ये दिया हुआ है आपको. तब क्या इक्वेशन बनी, p-2 डिवाइडेड बाई p+7 इज इक्वल टू 1/10. तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो गया 10 इंटू p-2 इज इक्वल टू 1 इंटू p+7. करेक्ट. तो इसका मतलब 10p - 20 इज इक्वल टू p+7. तो ये p को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और नंबर्स को राइट साइड में ले जाइए. तो 10p - p इज़ 9p, और 20 + 7 इज़ 27, है ना. तो 9p इज इक्वल टू 27. तो p इज इक्वल टू 3 के टेबल में आता है 3 9 = 7, तो p इज इक्वल टू 3. तो q इज इक्वल टू p+2, दैट मीन्स 3 + 2 5. तो क्या हो गया नंबर आपका 3/5, है ना.
अब नेक्स्ट करेंगे, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन साइड डिफर्स फ्रॉम द हाइपोटेन्यूज बाय 2 यूनिट्स। तो एक बात तो पक्की है कि ये 3 में ऐसा कुछ होना चाहिए कि डिफरेंस पहले तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए किन्हीं 2 आर्म्स में। अब पहला देखिए आप 2n + 1 4n 2n² + 2n। तो कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले तो 2 का ही डिफरेंस नहीं है भाई। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप देखो तो 2n² को जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4n⁴, और इस साइड में बाकी 2 आर्म्स में कहीं भी n⁴ नहीं आ रही है ना। तो पहला आउट हो गया ऑप्शन ए। नाउ बी 2n 4n n² + 1, उसमें भी वही प्रॉब्लम है, एक में n⁴ आ रही, बाकी दोनों में n² होके रह जाएगा, तो वो भी ऑप्शन बराबर नहीं है। दूसरे किन्हीं 2 आर्म्स में 2 का डिफरेंस नहीं है। सी देखिए 2n² 2n 2n + 1। ना यहाँ पर कुछ बन सकता था, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम, n⁴ हो रही, बाकी दोनों में कहीं 4 नहीं हो रही, तो वो भी आउट हो गया। डी जो है दैट साउंड्स लाइक गुड, बिकॉज उसमें जो है 2 का डिफरेंस है, n² - 1 और n² + 1 में, इससे क्लियर डिफरेंस ऑफ 2। दूसरे अगर n² - 1 और 2n 2 को ले, उन दोनों को प्लस करें तो n⁴ आ रही है, और इस साइड में भी n⁴ आ रही है ना। तो दिस लुक्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो इसको हम स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं। n² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4n² + n⁴ माइनस 2n² + 1। तो 4n² से 2n² सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचा 2n², तो हो गया n⁴ + 2n² + 1, है ना। देखिए 2n, हाँ n² - 1 में जो है 2n² माइनस हुआ, बट 2n का जब हमने होल स्क्वायर किया तो 4n² मिला हमें, तो 4 - 2 = 2n²। सो n⁴ + 1 + 2n² इज एक्चुअली ए ब्रेकअप ऑफ n² + 1 का होल स्क्वायर, विच इज़ द थर्ड आर्म, और यहाँ डिफरेंस भी है 2 यूनिट्स का। तो बस ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके है ना। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 व्हील्स इज 5:3। उनकी रेडाई का क्या रेशियो होगा, तो आप देखिए सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr, तो पहले देखिए होगी 2πr2 2πr1 2πr2 / 2πr1 इज इक्वल टू 5/3। अब आप देखिए 2π से 2π चला गया, दैट मीन्स r2/r1 इज ऑल्सो 5/3, तो रेडाई का क्या रेशियो हो गया 5/3, ओके। और नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और करते रहना चाहिए प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आसान लगेगा ये सब एग्ज़ाम, चाहे वो RMS हो या AISSE हो। मुझे लगता है कि SSEE AI ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि दोनों का फॉर्मेट, इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजी काफ़ी सिमिलर है। ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और आप RMS के पेपर्स मुझे शेयर करिए, आप बताइए कमेंट में, तो यू नो तो हम उसको करेंगे, है ना। सो मोर एंड मोर क्वेश्चंस यू शेयर विद मी, मोर एंड मोर सॉल्यूशंस आई विल गिव, राइट। ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, कुछ यहाँ पर थर्ड पेपर नहीं लोड हो रहा है ना। तो आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, ये मैं अभी इसको एडजस्ट करता हूँ, ओके। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17। द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। अब इसमें मार्क्स नहीं दिख रहे हैं कहीं, और मुझे लग रहा है कि ये हमने कुछ गलत हो गया, ये बराबर मिल नहीं रहा है। सो अगर मार्क्स होते तो देखिए मीडियन क्या होती है, मीडियन हमेशा जो मिडिल टर्म होता है मीडियन होती है। कभी आगे कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको समझा दूंगा, तब तक हम 18th करते हैं। फैक्टराइज 4a² - 9b² - 2a - 3b। क्वेश्चन नंबर 18। तो आप देखिए 4a² इज 2a का होल स्क्वायर, 9b² इज 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a - 3b। अब आपको पता होगा x² - y² इज x + y × x - y। तो 2a का होल स्क्वायर - 3b का होल स्क्वायर क्या हो गया, x की जगह 2a ले लीजिए, y की जगह 3b ले लीजिए, दैट विल बी 2a - 3b और 2a + 3b।
राइट। अब हम बाहर आए, -1 हमने कॉमन लिया तो 2a + 3b अंदर रह गया, है ना, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस। तो क्या हो गया, 2a + 3b कॉमन हो गया, राइट, और 2a - 3b -1 बच गया, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखें 2a + 3b इंटू 2a - 3b -1। ओके, तो बहुत क्लीन और बहुत एडिटेड वीडियोस नहीं होते मेरे, आपको लगेगा कई जगह ग्लिच है, ये है वो है, बट प्लीज़ बेयर विद मी, यू नो आई एम मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगला क्वेश्चन 19, √4 एंड देन √3 ऑफ 2 स्क्वायर निकालना है हमें। तो हमने इसको दूसरी फॉर्म में लिख लिया, दैट इज़ 2 का होल स्क्वायर टू द पावर 1/3 to the power 1/4, because that is what root indicates. Okay, now we know the property कि a to power x whole to the power y and whole to the power z is equal to a to the power x y z, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती। तो क्या हो गया यहाँ पर 2 to power 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, तो 2 से 4 गया 2 बचा, 2 to power 1/6 हो गया। नेक्स्ट, देर आर 200 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस। अब यहाँ पर तो क्वेश्चन गलत कॉपी हुआ है या ऑप्शंस बराबर नहीं है, कुछ गलती है, लेकिन हाँ मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि 200 एम्प्लॉइज़ एक ऑफिस में और उनके पास फूड है 20 दिन का। हाउ लॉन्ग विल द प्रोविज़न लास्ट इफ 90 ऑफ देम लीव द ग्रुप। तो आप देखिए 200 लोग अगर कोई खाना 20 दिन खा सकते हैं, मतलब अगर गलती से एक बंदा रह जाए तो वो कितने दिन खाएगा, 200 into 20 days खाएगा। सो देर इज फूड फॉर 200 into 20% डेज, ओके। और उसमें से अब रह गए कितने, 200 में से 90 चले गए तो बचे 110, तो 110 लोग कितने दिन खाएंगे, दैट इज 200 into 10 into 220 into डिवाइडेड बाई 110, ओके। तो आंसर आएगा करीब 36 डेज, जो यहाँ पर नहीं है। तो या फिर तो नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पर गलत है, या शायद जो पेपर मुझे इंटरनेट से मिला है वो उसमें कुछ कमी है, राइट। बट ये क्वेश्चन करने का तरीका यही है। नेक्स्ट इज 5 pipes आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 36 minutes। नाउ इसमें भी कुछ लास्ट में इफ़ 2 pipes स्टॉप वर्किंग है, शायद उन्होंने ये लिखा है, एनीवे मैं कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन आपका डालूँगा, ओके। सो दैट्स अबाउट इट। और आप पढ़ते रहिए, आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे लगे ये सॉल्यूशंस, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट लगता है होना चाहिए, हम वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करेंगे, ओके। और आप हमें क्वेश्चन पेपर्स शेयर करिए RMS के और सैनिक स्कूल के। इनफैक्ट सैनिक स्कूल के मेरे पास बहुत हैं, 22 का भी है, 20 का भी है, जो मैं करके यहाँ शेयर करूँगा यूट्यूब पर। बट RMS के पेपर्स मेरे पास नहीं है, 2023 के क्लीन कॉपी। सो इफ़ यू कुड शेयर दैट विल बी ग्रेट, ओके। एंड इसका तरीका यही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए, और आपको जहाँ जहाँ लगता है कि आई कैन हेल्प यू प्लीज़ लेट मी नो, और मैं वो क्वेश्चंस आपके आंसर करूँगा। वी विल सी कि हम एक डाउट क्लास भी रख सकें वीकेंड्स पे, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते कमेंट में, आई विल आंसर, ओके। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, and I'm sure that we together can do great. Thank you.